11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन न केवल एक सरकारी कार्यक्रम था, बल्कि ये भविष्य की शहरी संरचना और निवेश की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। बता दें कि ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विषयक सत्र में शासन के शीर्ष अधिकारियों ने नीतियों की स्पष्टता, नवाचार और निवेशकों की सुविधा पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। जब सरकार, प्रशासन और उद्योग एक मंच पर मिलते हैं तो सिर्फ नीतियां नहीं बनती, निवेश की नींव रखी जाती है। और इंदौर में हुआ यही। एमपी अब सिर्फ हृदय प्रदेश नहीं, बल्कि विकास प्रदेश बनकर उभर रहा है। आयोजन में शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां प्रशासन, पर्यावरण और समर्पित जनबल निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास के हर घटक, ट्रांसपोर्टेशन, अधोसंरचना विकास, सर्विस सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की व्यापक संभावनाएं हैं और जहां ग्रोथ की संभावना हो, वहां निवेश स्वाभाविक रूप से लाभकारी निर्णय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही। प्रत्येक विभाग की जवाबदेही निर्धारित की गई है ताकि निवेशकों को पूर्ण सहयोग मिले। To travel in Bangalore because it takes 5 kilometers to travel. It takes about an hour in the peak hours. Where else you would like to spend your time into your car, sitting into the fumes and saying that it is a livable city? So if we have to actually experience that yes, there is an opportunity of real-time investment, there is an opportunity that we want to capitalize on. The opportunity lies in Madhya Pradesh because of its dispersed population, because of its beautiful environment and nature, and because of the best human populations available here. They are the most, I would say, the friendly and the docile community put together, and that is the reason I would suggest that anybody who is serious about making the investment in Madhya Pradesh has to actually give a very, very serious thing, look into it. So over to this, that as you know that Madhya Pradesh has always been rated as the cleanest state, and Indore, particularly where you are seated, is successively being the cleanest city for 7 years, which is unheard of in any part of the world and any part of the country. And as we see that there are huge amount of large service sector which has come up. So if you see essentially in Madhya Pradesh, though we have a lot of important aspect of agricultural economy or a primary economy, but there is sufficiently vibrant sector for tertiary sector and a service sector. If you see the kind of growth that is being thought of and thinking of, you would see that it is far ahead of the national average. And I keep telling in my ITS presentations also that the next round of growth is not going to come from the big metropolis, but they are going to come from the towns like Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior and other places, because here is the place where the opportunity lies. Here is the footfall that is increasing. Here is the opportunity that the people would want to come back and be into this situation. So if at all one has to make an investment decision, they have to decide that yes, where the growth is there. And everybody says that if there is an opportunity of a growth, then only there you should be investing. And that shows clearly that we have, in terms of making the government expenditure as well as the private expenditure, there is a huge amount of growth which is far ahead of the growth that is happening nationally. हो या ITS के sector में हो, we are one of the most competitive states as of now because of our policies, because of the environment friendly administration that we have, and because of the opportunities that this state, such a beautiful state, offers. You talk to any investor, they would like to come and say, fine, it's good, we have not seen Madhya Pradesh as much, but if you start discussing with them, they would realize that whether it is wildlife, whether it is tourism, whether it is industries, whether it is real estate, there is plethora of opportunities that are available all across. And until we are serious about looking this as a destination, it's very rare that we will not miss this as one of the important decisions. So today, however, I am not going to dwell on various policies that the government of Madhya Pradesh has come up with.
because there has been a big, large global investor summit in the month of February, and since then, more than 30% of investment has actually got translated. So you can imagine within 3.5 months and 4 months, what we have achieved is about 30% of the announcements which were made in Global Investor Summit. They have actually done the groundbreaking ceremony, or they have already commissioned some of these projects. That is the beauty of the way that the administration has worked in last 4-5 months of after the Global Investor Summit under the leadership of Honorable Chief Minister. Today I am here only to say about the real estate and the opportunities that you have into the urban administration and housing projects. It's a very brief presentation, but since I also take care of the ITES department, we have policy. इस सत्र में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इंदौर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। उन्होंने बताया कि शहरीकरण और औद्योगिकरण को कैसे जोड़ा जाए, इस पर राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क्स और एमएसएमई स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एमपी की नीतियों को देश भर में सराहना मिल रही है। निवेश के लिए यही सही समय है। और फिर और अगर एक चरण आगे जाए तो मुझे खुशी इस बात की हम एक ऐसे शहर में हैं जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली दैट इट कंट्रीब्यूट्स सो मच, बट जो काइंड ऑफ मोमेंटम और जो एक ट्रस्ट मतलब इंदौर मालवा के रीजन से आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन के साथ जिसमें कि हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भारत मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, लगातार प्रयास हमारे जारी है। हर देश मेहनत का दौर है और एक जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो अवधारणा कंसेप्ट जिसको लेके हम लोग सभी चल रहे हैं मध्य प्रदेश शासन, उस अवधारणा के केंद्र में जो चीज़ है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन होना लाजमी है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में यही हुआ है, और कैसे उसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को कैसे क्लब करें और कैसे उसका एक जैसे कहते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ क्लब करें, सो दैट कि बाद में मोबिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, हाउसिंग की, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें परेशानियाँ ना हो। तो इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़े और केवल एक छोटी सी बात जो नीति आयोग के लोगों के साथ विचार विमर्श में कभी एक बार सामने आई कि इंदौर में वो ताकत है, काबिलियत है कि 2047 तक जब विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प हम सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, तो इंदौर में वो काबिलियत है कि अगर हम चाहें तो हम $700 बिलियन की इकॉनमी 2047 तक बन सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये हमारे अंदर ये पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कैसे फलीभूत करें, कैसे उसको क्रिस्टलाइज करें, तो मैं बहुत जल्दी से अपनी बात को अभी खत्म करूँगा। यूएडीडी कमिश्नर संकेत भोंडवे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले 5 वर्षों में शहरी विकास की क्या दिशा हो, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाअभियान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरी मोबिलिटी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है और प्रदेश सरकार रोपवे, रोडवे और मेट्रो जैसे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। श्री भोंडवे ने बताया कि अधोसंरचना प्रदेश के विकास का बूस्टर बन रही है और शहरी निवासियों के लिए डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और आगे चलकर डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाओं की योजना भी बनाई जा रही है। इस अवसर पर शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला। सत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोट, एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला, कमिश्नर दीपक सिंह तथा कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश न केवल नीति और नियोजन में अग्रणी है, बल्कि उन नीतियों के सशक्त और समयबद्ध क्रियान्वयन के जरिए निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उभर रहा है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।